Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is our computer class and our topic is Windows 10. My dear students, in our previous class, we studied the features of the Windows 10. We studied about that and desktop, taskbar, we defined them all. Now today in our class, we are going to study about icons. My dear students, as you all know, the small pictures present on our desktop are called icons. Icons are the small pictures that represent files, folders and apps. यानी कि जो आपके डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं, एक्चुअली वो पिक्चर्स होते क्या है, वो या तो कोई फाइल हो सकती है या फिर कोई फोल्डर. नाउ डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर? My dear students, let me tell you, like you have a computer book, okay, and this book has many chapters. You have a computer book and this book has many chapters. Just take each chapter as a file. For example, just take each chapter of the computer book as a file. Now these all chapters are binded together as a book, and this computer book, this acts as a folder. यानी कि जिस तरीके से आपके कंप्यूटर बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप ये समझ लीजिए कि हर कोई चैप्टर एक एक फाइल है, ठीक है, और इन फाइल्स को एक साथ जब हम रखते हैं, इट बिकम्स अ फोल्डर. ओके, सो सेम इज द केस हियर. जब एक सिंगल फाइल होती है, मतलब एक आइकन होता है, उसमें सिंगल फाइल होती है, वी कैन से इट्स अ फाइल. लेकिन अगर एक आइकन होती है, उसमें मल्टीपल फाइल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे फाइल्स होते हैं, सो दैट इज फोल्डर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, these icons play a very important role in graphical user interface. As I told you, this is GUI based graphical user interface, okay, and let us learn about some of the commonly used icons. My dear students, this PC is the first icon, this one, okay, and it gives you a view of the available drivers and their content stored on the computer system. यानी कि दिस पीसी आइकन जो है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा जब आप डबल क्लिक इस पे करेंगे? सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ व्हाट्स इट कॉल्ड, यू विल फाइंड in PC the number of drivers, means those drivers, those storage devices which are present in your computer, those all can be seen by using this PC icon. तो दिस पीसी आइकन को खोलने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डबल क्लिक ऑन इट, ओके, और जब ये खुलेगा तो इसके अंदर आपको सारे स्टोरेज डिवाइसेस, या हम बोल सकते हैं स्टोरेज ड्राइवर्स, इसके अंदर मौजूद होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज एप्लीकेशन icon. These are the graphical images that give a quick access to the related application. यानी कि एप्लीकेशन हमें क्या करता है, ये हमें किसी भी रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए क्विक एक्सेस कराता है, यानी कि क्विकली हम उसको ओपन, उस पर काम कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट इज शॉर्टकट आइकन. A shortcut is an icon containing a direct route to the specific application, document or a folder. It has a small jump arrow on its lower left end. यानी कि शॉर्टकट आइकन जो है, you can see it's always having this direct arrow, okay, left jump arrow on its lower left corner. And what is the shortcut? It's an icon that containing a direct route to a specific application. यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर उसका शॉर्टकट आइकन आपके डेस्कटॉप पे है, तो डायरेक्टली आप वहां से उस एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं या उस पे एक्सेस, यानी कि उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके, किसी भी फोल्डर या फाइल को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज डॉक्यूमेंट आइकन्स. द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज्ड to the document icon which gets placed on the taskbar, and you can restore the document window by clicking on the document icon again. मतलब अगर आप की कोई एक्टिव विंडो खोल के हैं कंप्यूटर पे और आप उसको मिनिमाइज करना चाहोगी, यानी कि आपको कुछ और करना है कंप्यूटर पे, तो इस वाले प्रोग्राम पे को आप क्या करोगे, मिनिमाइज. तो जब आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल श्रिंक होके मिनिमाइज हो जाएगी, तो इसका एक डॉक्यूमेंट आइकन बन जाएगा आपके टास्कबार पे. तो उसको वापस से व्यू करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन इट एंड this file will be opened again, okay. So my dear students, after that is network icon. It allows you to access the shared files or devices on different computers in a
नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से ये हमें कनेक्ट कराता है। नेटवर्क का मतलब कि ये हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है और हम आसानी से अपने फाइल्स एक दूसरे कंप्यूटर में, मतलब एक दूसरे के कंप्यूटर्स पे शेयर कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इज रिसाइकल बिन। यू नो द रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट होल्ड्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जब भी आप फाइल्स एंड फोल्डर्स कोई भी डिलीट करते हैं तो याद रखिएगा कि वो टेम्पररी डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि वो रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाता है। एंड अगर रिसाइकल बिन में आपको इसको वापस रेस्टोर भी करना होगा, यू कैन डू द सेम बाय क्लिकिंग ऑन द रिसाइकल बिन एंड आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन दैट you can restore the file or a folder by clicking on the restore button. And my dear students, just keep this in mind also. If you will delete a file in a recycle bin, you cannot restore that all. Okay. After that is start menu. The start menu in Windows 10 is a blunt of an old menu फाउंड इन विंडोज 7। मतलब स्टार्ट मेन्यू वैसा ही है जैसे, मतलब उससे डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू जो है ना, जैसे विंडोज 7 में था, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट स्क्रीन इन विंडोज 8, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, यू गेट 2 पैनल्स साइड बाय साइड। क्या होता है कि जब भी आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यू विल सी द 1 पैनल हियर एंड 1 पैनल हियर साइड बाय साइड। ओके, तो 2 साइड बाय साइड आपको मिलेंगे। द लेफ्ट डिस्प्ले इज द पिन्ड, रिसेंटली एडेड एंड द मोस्ट यूज्ड ऐप। यानी कि ये लेफ्ट साइड हमें क्या दिखाता है, जो एप्स हम ज्यादातर यूज करते हैं और जो रिसेंटली हमने यूज किए उनको व्यू करता है लेफ्ट साइड वाला पेन। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द राइट कॉलम डिस्प्लेज अ सेक्शन ऑफ लाइव टाइल्स दैट यू कैन कस्टमाइज, रिसाइज एंड रिऑर्गेनाइज। एंड राइट साइड हमें क्या दिखाता है, लाइव टाइल्स। तो इनको हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज, रिसाइज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। आफ्टर दैट आर लाइव टाइल्स. Live tiles. Windows 10 displays the most popular universal apps in the form of resizable live tiles in the right pane of the start menu. Right pane में start menu की, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई. These are live tiles. And my dear students, these tiles display latest updates and information such as news, weather report, incoming mails, etc. जी, ये टाइल्स हमें डिस्प्ले कराते हैं हर किसी चीज से, चाहे कोई अपडेट हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, लाइक न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स, तो वो सारे लाइव टाइल्स में हमें डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके, एंड विदाउट ओपनिंग दिस ऐप you can rearrange, resize and move these tiles according to your requirement. जिस तरीके से आप चाहे you can do. Okay, यानी कि you can move your files accordingly when मतलब the way you want. And after that is pinning tiles to start. Dear students, if you will click on the start button and right click on the app that you want to add to the start menu, select the open option pin to start. फिर किस पे क्लिक करना है, pin to start. You can see here, this is the option you have to click on, pin to start. The selected apps will be displayed in the right pane in the form of a tile. यानी कि जिसको भी आपको इन टाइल में चेंज करना होगा, टाइल में कन्वर्ट करना होगा, दिस इज वेरी सिंपल. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू स्टार्ट, मतलब जो भी आपको, जिसका टाइल आपको यहां से दिखवाना है, तो उस वाले ऐप पे आपको राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ जाएंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन पिन टू स्टार्ट, और ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्टेड फाइल जो होगी उसका यहाँ पे लाइव टाइल बन जाएगा, यानी कि वो लाइव टाइल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ड्रैग द ऐप एंड ड्रॉप इट इन द टाइल एरिया to display it in the right pane of the start menu. So after that is resizing tiles. You can also resize the tiles according to your choice. Tiles are generally available in 4 different sizes: small, medium, wide, large. And to resize a tile, follow the given steps. What you have to do, you have to right click on a tile and select the size. यानी कि आप याद रखिएगा, when you will right click on any icon, there will display a right click menu, and among them you can choose the option which you want to
apply. Okay, so here you have to click on the resize option and select the size of your choice, and you can select the size of your choice, whether you have to select it as small, medium, wide or large. You can choose that according to your choice. After that is moving and grouping. You can move a tile to any place in the start menu just by dragging it to the desired position. इसको drag करके, okay, and this can be combined to form a group. इससे क्या होगा, टाइल्स कैन बी ऑल्सो बी कंबाइंड टू फॉर्म ए ग्रुप. टाइल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं और एज अ ग्रुप इसको बना सकते हैं. ओके, एंड उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू ड्रैग ए टाइल टू द बॉटम ऑफ द राइट पेन इन द स्टार्ट मेन्यू. A transparent horizontal bar appears with the heading name group on the left side and 2 small horizontal lines on the right. यानी कि जब भी आप किसी भी ट्रांसपेरेंट हॉरिजेंटल बार, मतलब ये ना, जब भी आप ड्रैग करेंगे कोई टाइल टू द बॉटम ऑफ द राइट पेन, ओके, स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजेंटल बार जैसा आ जाएगा. ठीक है, एंड विद द हेडिंग नेम ग्रुप, और उसका हेडिंग क्या होगा, नेम ग्रुप. और नेम ग्रुप के लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में होगा, और 2 स्मॉलर हॉरिजेंटल लाइन्स होंगे ऑन द राइट. यू कैन सी नेम ग्रुप और यहां से हॉरिजेंटल 2 लाइन्स. ओके, एंड क्लिक ऑन द नेम ग्रुप एंड एड ए नेम, एंड नाउ यू कैन एड द रिलेवेंट टाइल्स इन दिस ग्रुप. फिर जो भी आपको टाइल्स चाहे आप उनको इसमें ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. एंड टू मूव अ होल ग्रुप ऑफ टाइल्स ड्रैग द 2 स्मॉल लाइन्स टू द डिजायर्ड पोजिशन. अगर होल ग्रुप ऑफ टाइल्स को ड्रैग करना है तो इनको पहले ड्रैग करना है टू द डिजायर्ड पोजिशन जहां पे हम चाहते हो. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.